آج ہم بات کریں گے انچارٹیڈ مووی کے بارے میں، جس میں ٹام ہالینڈ نے ٹریزر ہنٹر نیتھن ڈریک کے رول کو پلے کیا ہے۔ یہ مووی ایکشن ایڈونچر سے بھری ہوئی جس میں نیتھن اپنے مینٹر سولی کے ساتھ ڈینجرس ٹریزر ڈھونڈتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کہانی کو۔ کہانی کے سٹارٹنگ میں ہم دو بھائیوں کو دیکھتے ہیں۔ چھوٹے بھائی کا نام جیک تھا اور اس کا نک نیم جے تھا۔ دونوں بھائی ایک میوزیم میں چپکے سے داخل ہو کر ایک نقشہ چرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی دوران پولیس اہلکار پہنچتے ہیں اور بچوں کو یتیم خانے لے جاتے ہیں۔ ان کے والدین نہیں تھے اور انہوں نے اپنی ساری زندگی یتیم خانے میں گزاری تھی۔ جے کے بڑے بھائی نے کئی بار نقشہ چرانے کی کوشش کی تھی کیونکہ جے اور اس کے بھائی قزاقو خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ نقشہ ایک خزانے کا راز ظاہر کرتا تھا۔ یتیم خانے کی نگران بہن آفیسر کو بتاتی ہے کہ آپ جے کے بڑے بھائی کو لے جا سکتے ہیں کیونکہ جے کافی چھوٹا ہے، اور چونکہ بڑے بھائی نے قید ہونے کے باوجود چوری کی تھی، تاہم جے کا بڑا بھائی خود کو پولیس کے حوالے کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ نتیجتاً وہ جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ اپنا سامان پیک کرنے کے لیے اپنے کمرے میں جاتا ہے۔ جے اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جے کو اپنے بڑے بھائی سے ایک ہارڈ لائٹر اور ایک خط ملتا ہے، پھر وہ یہ کہہ کر چلا جاتا ہے میں ضرور واپس آؤں گا۔ جب جے اپنے بڑے بھائی کے جانے کے بعد خط کھولتا ہے تو وہ لائٹر کی روشنی لگا کر ایک پیغام پڑھتا ہے۔ اس میں لکھا تھا کہ ہم قزاقو کے خاندان سے ہیں اور ہمارا دوبارہ ملنا تقریباً یقینی ہے۔ اس کے بعد منظر بدلتا ہے اور ہم 15 سال کے بعد کا منظر دیکھتے ہیں۔ ہم جے کو ایک بالغ کے طور پر دیکھتے ہیں جو ایک بار میں کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ چوری بھی کرتا تھا۔ جب جے بار میں کام کر رہا تھا تو ایک آدمی جس کا نام ویکٹر تھا اس سے ملنے آتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ اسے اور اس کے بڑے بھائی کو جانتا ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کبھی اس کے ساتھ کام کرتا تھا، لیکن جے کو اس میں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ویکٹر کو جانے کا کہتا ہے، لیکن ویکٹر جاتے ہوئے اسے ایک کارڈ دیتا ہے۔ کارڈ پر ویکٹر کا پتہ لکھا ہوتا ہے۔ اگلے منظر میں جے ویکٹر کے گھر جاتا ہے۔ ویکٹر کے گھر پہنچنے کے بعد وہ وہی نقشہ دیکھتا ہے جسے وہ اس کا بھائی چرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی دوران ویکٹر آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے اگر آنا تھا تو مجھے بتا دیتے۔ جے ویکٹر کو بتاتا ہے کہ یہ وہی نقشہ ہے جس کی تلاش میں بہت سے لوگ رہے ہیں۔ یہ ایک خزانے کا نقشہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس مقصد کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی لیکن کچھ حاصل نہ کر سکے۔ یہ ایک بیکار کہانی تھی۔ ویکٹر جے کو یقین دلاتا ہے کہ یہ کوئی بیکار کہانی نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اور تمہارے بھائی اس نقشے کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہو۔ ویکٹر بعد میں جے کو ایک کتاب اور ایک جہاز کی تصویر دیتا ہے۔ یہ کوئی عام جہاز نہیں ہے، یہ ایک قدیم جہاز ہے جس کی قیمت 500 ملین ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس جہاز پر ایک دفن خزانہ بھی موجود ہے۔ یہ 18 افراد کے ایک گروپ کے پاس رکھا گیا تھا۔ ویکٹر اسے جانے نہیں دے سکتا تھا کیونکہ وہ خزانے کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ اب وہ جے کو اپنے ساتھ کام کرنے کی پیشکش کرتا ہے لیکن جے انکار کر دیتا ہے۔ ویکٹر کہتا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ چلو تو تمہیں اپنے بھائی کو ملنے کا موقع مل سکتا ہے۔ جے اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے بھائی کی چیزیں دیکھنے لگتا ہے۔ بعد میں وہ ویکٹر کے ساتھ کام کرنے پر رضامند ہو جاتا ہے۔ اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ جے ویکٹر کو ایک سلیب کا نشان دیتا ہے۔ وہ وضاحت کرتا ہے کہ یہ سلیب کا نشان نہیں بلکہ خزانے کو کھولنے کی چابی ہے۔ ویکٹر دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک چابی ہے اور دوسری کو جلدی سے چرایا جانا چاہیے۔ ویکٹر بتاتا ہے کہ دوسری چابی ایک نیلامی کمپنی کے پاس ہے اور وہ چابی جلد ہی دکھائی جائے گی۔ ہمیں وہ چابی جلدی سے چرانا ہوگی۔ ویکٹر اس کمپنی کا دورہ کرنے کے بعد چابی چرا لیتا ہے۔ وہ جس جگہ سے چابی چراتا ہے وہاں سے واپس آ رہا تھا۔ ایک لڑکی بریٹ ویکٹر کی گردن پر چاقو رکھتے ہوئے آتی ہے۔ وہ اپنے باس کے احکامات پر چابی اپنے باس کے پاس پہنچانے کے لیے آئی تھی۔ یہ وہ کر رہی تھی اپنے باس کے ہدایت پر۔ یہ ویکٹر کا پرانا دشمن تھا جب وہ دونوں اس چابی کے لیے لڑ رہے تھے۔ اسی دوران کچھ گارڈز پہنچ جاتے ہیں جن کا ویکٹر فائدہ اٹھاتا ہے۔ چابی حاصل کرنے کے بعد وہ فرار ہو جاتا ہے۔ ویکٹر چابی حاصل کرنے کے بعد سلونا جاتا ہے۔ وہ ایک لڑکی فریزر سے ملتے ہیں جو پہلے ہی ویکٹر کو جانتی تھی لیکن وہ جے کو نہیں جانتی اور اس کے بارے میں پوچھتی ہے۔ ویکٹر اسے اپنا پرانا دوست کہہ کر متعارف کرواتا ہے۔ جے کو پتہ چلتا ہے کہ دوسری چابی ویکٹر کے پاس نہیں بلکہ فریزر کے پاس ہے۔ جے ویکٹر کے سامنے کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ فریزر کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے تمہیں صورتحال کا مکمل علم نہ ہو۔ جب وہ بحث کر
कर रहे थे, फ्रीजर चाबी चोरी करके मंदिर से निकल जाती है। जब वो एक दूसरे का पीछा कर रहे थे, फ्रीजर जे से आगे भाग रही थी। फ्रीजर जो अपनी गाड़ी में बैठी होती है, जाने की तैयारी करके जे इसकी गाड़ी के सामने आ जाता है और विक्टर भी वहां पर पहुंच जाता है। वो फ्रीजर से कहता है कि पूरा खजाना लूट लो, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ जे को सूरत हाल का इल्म है। और ये सुनकर फ्रीजर इनके साथ काम करने पर राजी हो जाती है। जे इन्हें बताता है कि खजाना कई साल पहले इन 18 अफराद ने चर्च के करीब छुपाया था। वो चर्च पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जे अपने भाई की दी हुई कार्ड्स को देखने लगता है। नतीजतन वो पुरअदमाद होता है, वो सही जगह पर है। फिलहाल वो तीनों चर्च के तहखाने में पनाह लेते हैं। वो चाबी के फ़ाल होने की जगह को तलाश करते हैं। चाबी मुजस्मे के नीचे छुपी हुई थी। इन्हें मालूम नहीं था कि चाबी किस कीमत में घुमानी चाहिए। विक्टर किताब में पढ़ता है कि दोनों चाबियां घड़ी की कीमत घुमानी होगी। नतीजतन मुजस्मे से तीर निकलने लगते हैं, ताहम तीनों महफूज रहते हैं। एक बार फिर खतरा मोल लेने के बाद जे और फ्रीजर चाबियां उल्टी कीमत में घुमाते हैं। इसके बाद मुजस्मे के पीछे एक रास्ता नमूदार होता है। ये रास्ता गार्ड के जरिए जाता है। बाद में जे विक्टर को बताता है कि हमें वहां जाने के लिए अलग रास्ते इख्तियार करने होंगे। वो कहता है कि फ्रीजर और मैं एक ही रास्ते से जाएंगे और तुम एक और रास्ता इख्तियार करोगे। और विक्टर और जे अपने फोन्स के जीपीएस को कनेक्ट करते हैं। एक रास्ता जे और फ्रीजर को ले जाता है, जबकि विक्टर दूसरे रास्ते पर चलता है। जे और फ्रीजर जेरे जमीन रास्ते पर चलते हुए एक बार पहुंचते हैं। वहां एक खुफिया रास्ता था जिसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। कुछ लोग इन पर हमला करते हैं इससे पहले कि वो इस रास्ते से निकल सके। जय इनसे लड़ता है। दूसरी तरफ फ्रीजर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। दरवाजा खोलने के बाद जे और फ्रीजर वहां से निकल जाते हैं। इन्हें एक तीसरा दरवाजा मिलता है जो सिर्फ स्लेब की चाबी से खुल सकता था। जब फ्रीजर इसे खोलने की कोशिश करती है तो पानी दरवाजे को ढांकने लगता है, क्योंकि पहले दरवाजे को खोलना जरूरी है ताकि दूसरा दरवाजा खोला जा सके। ये सिर्फ विक्टर ही खोल सकता था। विक्टर दूसरी तरफ दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। इसी दौरान वही लड़की जो पहले इस पर हमला कर चुकी थी जाहिर होती है। दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई होती है। दूसरी तरफ जे और फ्रीजर पानी में फंस चुके थे और बेहोश होने ही वाले थे कि विक्टर उस लड़की को बेहोश कर देता है और बंद दरवाजे पर चाबी को लगा देता है। आखिरकार जे और फ्रीजर इस दरवाजे से बाहिफाजत निकल जाते हैं। अब आखिरी दरवाजे में दाखिल होने की बारी थी। किसी को मालूम नहीं था कि ये दरवाजा कैसे खुलना है। विक्टर एक सुराख से बाहर खड़े होकर इन्हें देख रहा था। इसी दौरान जे अपनी अकल का इस्तेमाल करता है और फ्रीजर से कहता है कि विक्टर से दूसरी चाबी लेकर आओ। विक्टर इन पर भरोसा नहीं करता और दूसरी चाबी देने से इनकार कर देता है। आखिरकार विक्टर दूसरी चाबी दे देता है क्योंकि इसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जे दरवाजे पर एक निशान देखता है। जब जे दोनों चाबियों को जोड़ता है तो वही निशान दरवाजे पर नमूदार होता है। नतीजतन वो दरवाजा खोल लेते हैं। जब वो इस दरवाजे से गुजरते हैं तो वो 3 बड़े बर्तन देखते हैं। विक्टर दूसरी तरफ जे से खजाने के बारे में सवालात करता रहता है। जे फ्रीजर को उल्टा कर देता है ताकि बर्तनों के अंदर क्या है मालूम हो सके। जब फ्रीजर बर्तनों के अंदर देखती है तो इसे पता चलता है कि इनमें नमक की बहुत बड़ी मिकदार मौजूद है। इसका मतलब था कि खजाना नहीं मिलना था। इसी दौरान तीनों बर्तनों में से एक टूट जाता है। वो देखते हैं कि वहां से एक नक्शा निकल कर आता है। ये खजाने तक पहुंचने के लिए असली नक्शा था। फ्रीजर जे को देखकर इस पर बंदूक तान लेती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है विक्टर ने तुम्हें सच बताया है। वो जे के सर पर गोली मारती है जिससे जे बेहोश हो जाता है। वो इसके बाद वहां से नक्शा लेकर चली जाती है। वो चाबियां भी साथ ले जाती है। बाद में विक्टर जे के पास आता है और इसे बेहोश देखता है। जब जे होश में आता है तो वो समझते हैं कि फ्रीजर ने इनसे धोखा किया है। जब जे होश में आता है तो वो अपने भाई के बारे में पूछता है। वो कहता है कि जो तुमने मुझसे छुपाया था वो क्या था। वो कहता है कि वो और तुम्हारा भाई कई साल पहले खजाने की तलाश में गए थे। इसके लिए हमें एक किताब चुराना पड़ी जो हमने कर भी लिया। मरकादू के रिहायशियों ने हम पर फायरिंग की। जब हम वापस आ रहे थे तुम्हारे भाई गोली लगने के नतीजे में जख्मी हुआ और वहां पर ही मर गया। ये सुनकर वो जज्बाती हो जाता है और रोने लगता है। वो कहता है कि तुमने उसे मरने के लिए छोड़ दिया, अब तुम मुझ पर एतमाद करके दोबारा खजाना हासिल करने की कोशिश
कर रहे हो। विक्टर दूसरी तरफ कहता है कि मैंने झूठ बोला, लेकिन ये तुम्हारे भाई की ख्वाहिश थी कि तुम इसके मरने के बाद इसका ख्वाब पूरा करो। जे इसका यकीन दिलाता है कि वो खजाना तलाश करेगा और इसकी ख्वाहिश को पूरा करेगा, लेकिन इसके बाद हम अपने अपने रास्ते पर चलेंगे। बाद में फ्रीजर ब्रेड और इसके बॉस के साथ नजर आती है, जो ये जाहिर करता है कि वो इनके लिए काम कर रही थी। ब्रेड के आजिर ने इसे बताया कि वो अब फ्रीजर के तहत काम करेगी। बाद में ब्रेड का आजिर अपने अमले के साथ जहाज में खजाने की तलाश के लिए रवाना होता है। उन्होंने तमाम जरूरी चीजें अपने साथ ली हैं। ब्रेड का सुपरवाइजर इस बात पर फख्र कर रहा था और सबसे कह रहा था कि ये मेरा खजाना है जो मेरी फैमिली ने बहुत अरसे से खो दिया था। इसी दौरान ब्रेड आती है और अपने बॉस को मार देती है। फ्रीजर को ये समझ आता है कि इसके बॉस को मारने के बाद अब वो इसको भी मार डालेगी, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वो जहाज की कार में छुप जाती है। ब्रेड अपने आदमियों को हुक्म देती है कि अगर वो फ्रीजर को कहीं पर भी देखे तो उसे गोली मार दे। इसी दौरान जे और विक्टर फ्रीजर को तलाश करते हुए जहाज में पहुंचते हैं और वो कार की डिक्की में बैठे होते हैं। उन्होंने नक्शा लिया और फ्रीजर को तलाश करते हुए इसका फायदा उठाया। बाद में ब्रेड और फ्रीजर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। वो एक दूसरे पर गोलियों की बरसात कर रहे थे। विक्टर जे को बताता है कि हमने नक्शा तलाश कर लिया है और हमें पैराशूट लेकर यहाँ से अब निकलना चाहिए। विक्टर पैराशूट लेकर रवाना हो जाता है, जबकि जे रुककर ब्रेड से पूछता है कि तुमने मेरे भाई को मारा। पैराशूट के साथ माल को जोड़ने के बाद वो इसे खोलता है। नतीजे के तौर पर तैयारे से सामान बाहर आना शुरू हो जाता है। ब्रेड के लोग विक्टर और जे पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान जे का पांव माल में फंस जाता है। वो सामान के साथ हवा में उछलना शुरू कर देता है। काफी कोशिश करने के बाद वो दोबारा से तैयारे में आ जाते हैं। इसी दौरान फ्रीजर एक गाड़ी लेकर तैयारे से छलांग लगाती है। जे भी वहां खड़ा था और वो गाड़ी के साथ गिर जाता है। दोनों गिर रहे थे और फ्रीजर जे से कहती है कि पैराशूट को खोलो, लेकिन जे के पास कोई पैराशूट नहीं था। वो दोनों हवा में उड़ रहे थे, लेकिन इसी दौरान जे एक माल का पैराशूट खोल लेता है। वो दोनों इस माल में जा पहुंचते हैं और पैराशूट के जरिए समुंदर तक पहुंच जाते हैं। वो दोनों एक साहिल पर पहुंचते हैं और होटल में क्याम करते हैं। वो होटल में चेक ऑन करने के बाद नक्शे को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रीजर दूसरी तरफ कुछ नहीं समझ पाती और सो जाती है। जे सारी रात मेहनत करता है, नक्शा समझता है और नोटिस बनाता है। फ्रीजर सुबह उठकर देखती है कि जे ने नक्शा समझ लिया और नोटिस बनाया है। वो फिर अपनी होशियारी दिखाती है और नोट लेकर खजाने के लिए रवाना हो जाती है। जब जे बेदार होता है तो वो देखता है कि नक्शा गायब हो चुका था। ये देखकर वो मुस्कुराता है क्योंकि इसने नक्शे पर गलत जगह का जिक्र किया था। जे जानता था कि असली जगह कहाँ पर है। अगले मंजर में जे नक्शे की जगह पर पहुंचता है। वो एक जजीरे की गार में वाक़या थी। ब्रेड दूसरी तरफ जे की निगरानी कर रही थी। जे गार तक पहुंचने के लिए पानी में छलांग लगाता है। वो दो बड़े जहाज देखता है और बहुत से लोग इस कश्ती को तलाश करते हुए मर चुके हैं। जब जे कश्ती में दाखिल होता है तो वहाँ सोने की बहुत बड़ी मिकदार पाता है। इसी दौरान वो विक्टर के कदमों की आवाज को सुनता है। जे खौफजदा हो जाता है और ये सोचता है कि वो यहाँ पर कैसे पहुंचा। वो कहता है कि तुमने मुझे अपने जीपीएस से जोड़ा था। ब्रेड अपने लोगों के साथ आती है। जब दोनों ब्रेड को वहां पर देखते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जे और विक्टर छुप जाते हैं। ब्रेड अपनी टीम को कॉल करती है और जहाज पर सवार होने की तैयारी करती है, क्योंकि वो जानती है कि कश्ती के अलावा खजाना भी लाखों की कीमत का है। विक्टर और जे सामने आकर ऐलान करते हैं कि वो कश्ती चुराना चाहते थे। वो कश्ती के करीब पहुंचकर गार्ड से लड़ना शुरू कर देते हैं। जे भी गार्ड्स को मार रहा था, गार्ड्स को पानी में फेंक रहा था। वो गार्ड्स को एक एक करके मारकर कश्ती पर काबू पा लेते हैं। जब ब्रेड ये देखती है तो वो गुस्से से बढ़ जाती है और दूसरी तरफ कश्ती के साथ इन पर हमला करती है। विक्टर फौरन हेलीकॉप्टर को दूसरी सिमत में ले जाता है ब्रेड के चुंगल से बच सके। ब्रेड इसका पीछा कर रही थी क्योंकि ब्रेड के लोग जे की कश्ती पर हमला कर रहे थे। इसी दौरान ब्रेड जे की कश्ती को मारने के लिए तैयार हो रही थी। जब सब जे के साथ लड़ना शुरू हो जाते हैं, जे के ब्रेक के हेलीकॉप्टर पर हमले की वजह से इसका हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है। इसी दौरान इसकी कश्ती पहाड़ से टकराकर तबाह हो जाती है। ब्रेड वहां से निकलकर जे की कश्ती पर पहुंच जाती है। वो जे से कहती है कि अगर कोई मेरा नहीं तो वो किसी का भी नहीं हो सकता। ये कहकर वो कश्ती का इंजन समुद्र में
फेंक देती है, जिसकी वजह से कश्ती और हेलीकॉप्टर दोनों आगे नहीं जा सकते थे। विक्टर का सोने से बड़ा बैग भी गिरना शुरू हो जाता है। वो बैग बचाने के लिए हेलीकॉप्टर को ऑटो पायलट पर लगाकर जाता है। दूसरी तरफ ब्रेट और जे कश्ती पर लड़ रहे थे। जे हेलीकॉप्टर पर चढ़ने की कोशिश करता है और ब्रेट इसके पीछे है। विक्टर अपने सोने से बड़ा बैग कुर्बान करता है और ब्रेट पर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाती है। इसी दौरान कश्ती का रस्सा जो हेलीकॉप्टर से बंधा था टूट जाता है। विक्टर जे को पलट देता है, मगर कश्ती ब्रेट पर गिर जाती है, जिसके नतीजे में वो मर जाती है और कश्ती टूटने के बाद